Assalamu alaikum. So today we will be discussing the topic which is oligopoly. ओलिगोपोली की अगर हम मज़ीद आगे बात करें तो ओलिगोपोली की सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो हमारे पास होती है एयरलाइंस। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन को। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशंस, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वेयर एज इन इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर आर ओनली अ फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स के पास कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता, जबकि इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बायर्स एंड सेलर्स हैव देयर ओन प्राइस कंट्रोल्स। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एंट्री एंड एग्जिट इज कम्प्लीटली फ्री, जबकि इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एंट्री एंड एग्जिट हैव मल्टीपल बैरियर्स। परफेक्ट कॉम्बिनेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर, जबकि इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में द प्रोडक्ट्स आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड. Then we discuss the examples of perfect combination, which is milk, and imperfect combination में pharmaceutical companies manufacturing, they are also an example of imperfect combination. Then when we divide imperfect combination, there are three types of imperfect combination: monopoly, monopolistic combination, and oligopoly. In monopoly, there is only one buyer or seller, and there is no other close substitute product available. And in monopolistic, there are number of buyers and sellers, and the products are similar but differentiated. Monopoly की सबसे best example in Karachi, it is K Electric, Electricity, because they provide in the largest quantity and with the lowest rates available. Monopolistic competitions, there can be multiple type of restaurants which can be covered under the monopolistic competition. Now come across what is oligopoly. If we discuss what is oligopoly, so since it comes under the heading of imperfect competition, imperfect market, it is the imperfect competition market. There are only a few buyers and sellers, and when I say there are only a few buyers and sellers, it means 2 to 20 buyers and sellers. If there are 2 buyers only, so it is called duopoly. अगर की इनसाइट्स की बात की जाए, सो मार्केट बिहेवियर डिफाइंस द कंपटीशन, एंड इन केस ऑफ ओलिगोपोली टॉप 5 कंपनीज हैव 60% ऑफ द मार्केट शेयर. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली इज एयरलाइन कंपनीज. अगर फीचर्स की बात की जाए तो ओलिगोपोली के जो सबसे पहला फीचर है दैट इज प्राइस. अगर सिंस देयर आर ओनली 2 to 20 firms available in the oligopoly, so they can either agree with the price or they can either disagree with one price set. If they agree with the price, they cooperate with one another, and if they disagree with the price, that they could create a collusion, a mismatch, a collusion between them. Then comes the barrier of entry and exit. The barrier of entry and exit into this market is very high. The cross elasticity is very high. If one changes the price, the other's quantity affects. If one decreases the price, for example, the others if the other have a high price, and for example there are two companies, company A and company B. Company A and company B initially have the same prices, but then what happened is that company A decreases the price as compared to company B. So the quantity of the company B would also get affected. Either it will increase, either it would decrease, depending on the condition. So cross elasticity is very high. Consumers की बात की जाए तो consumers में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है. कंज्यूमर आर वेरी लो और अप्रॉक्सिमेटली नो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. Then what are the advantages? They can agree on the price, they earn economic profit, long run में they earn standard profit, price stability आती है, collusion agreement आपके पास आ सकता है. उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो collusion agreement से आप प्रिवेंट कर सकते हैं. And customer can easily compare the prices. Disadvantages is customer surplus जो है वो reduce हो जाता है, incentive जो है वो failure की तरफ आपको move कर देते हैं, and there is a price war. So under oligopoly, there are multiple types of forms. We will be discussing 4 forms. Number 1 is contestable market. When we say contestable market means there is a threat of the new entrants. This form was given by 1982 by William J. Baumol, and he says firms under competitive condition charges that price which is settled through demand and supply forces and yield competitive equilibrium due to continuous threat of new entrants. Competitive condition के अंदर firms वो प्राइस चार्ज करती हैं जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने सेटल किया हो और जो एक इक्विलिब्रियम पे हो, ताकि वो प्रिवेंट कर सके न्यू एंट्रेंट्स को, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई थ्रेट रहता है न्यू एंट्रीज का. सो हाउ कैन न्यू एंट्रीज बी डन? लो बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से, लार्ज पूल ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स की वजह से, गुड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है,
जो इंक्यूमेंट फर्म्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो सब्जेक्ट करती हैं हिट एंड रन कंपटीशन. Firms leave with low sunk cost due to threat and economic profit is converted to normal profit. At this price, no firm is willing to pay enter into the market as the firm's normal equilibrium. इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो राइवल फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं. compete करने के नतीजे में वो एंटर करती हैं मार्केट के अंदर. कुछ लिटिल बैरियर्स उनको फेस करने पड़ते हैं. कंटिन्यूस एंट्रेंस जो होती है फर्म की वो आपके पास फर्म का जो फोकस होती है वो सेल्स वॉल्यूम पे ले आती है बजाय इसके कि वो प्रॉफिट पे हो. ओलिगोपोली फर्म्स इस कंटेस्टेबल मार्केट के अंदर मोर लाइक एन मोनोपोलिक फर्म जब वो एक्ट कर रही होती हैं. ओलिगोपोली फर्म जब वो हाई प्राइस चार्ज करती हैं मैक्सिमाइज कर रही होती है अपने प्रॉफिट को. द रूल स्टेज द सेम, एम आर इज इक्वल टू एम सी. अगर इसकी ग्राफ के ऊपर देखें तो डिमांड इज द एवरेज रेवेन्यू, ये एम आर का हमारे पास ग्राफ हो गया. एंड देन वी से एवरेज कॉस्ट एंड द marginal cost. So this is the price P1 and Q1. This is the point A where they charges the price. ठीक है. इंक्यूबमेंट फर्म प्राइस चार्ज करती है P1 पे ताकि वो जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न कर सकें. और इन करंट मार्केट्स को डिक्रीज करने के लिए ये क्या करती हैं कि ये कम प्राइस पे चली जाती हैं, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, प्राइस कम कर देती हैं ताकि नई फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर कर सकें. इस प्राइस के ऊपर जो पॉइंट पी के ऊपर प्राइस है, इस पॉइंट पे नई फर्म जब वो मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेगी एज यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है. तो प्राइस को कम करती हैं, क्वान्टिटी को इंक्रीज करती हैं ताकि नई फर्म्स जो है वो मार्केट के अंदर एंटर ना कर सकें. दिस इज कॉल्ड द कंटेस्टेबल मार्केट. कंटेस्टेबल मार्केट कहा जाता है इसको. और इसको कंटेस्टेबल मार्केट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्राइसिंग है वो सेट होती है डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर. एक कंटेस्टेबल इक्विलिब्रियम जब वो जनरेट होता है क्योंकि हमेशा थ्रेट होता है किसी ना किसी न्यू एंट्रेंस का. नाउ प्राइस लीडरशिप थ्योरी.